We have started with the chapter 18, Body Fluids and Circulation. We are studying human circulatory system, which comprise blood, blood vessel and heart. After completing blood, blood vessel and we started with heart. Earlier we studied morphology of human heart, external structure of human heart from ventral side and dorsal side, and now we started with internal structure of heart. You know, in previous lecture we talked about human heart is completely four chambered. The upper two chambers, blood receiving chambers, thin walled chambers, small chambers are called atria. The lower two chambers are large, thick walled, blood pushing chambers called ventricles. Between two atria, there is an interatrial septum. Between two ventricles, there is an interventricular septum. And between atria and ventricles, there is atrioventricular septum. On right side, it is called right atrioventricular septum. On left side, there is left atrioventricular septum. There is no opening between the right and left atrium. So, the oxygenated blood do not mix. There is no aperture between right ventricle and left ventricle. So, the deoxygenated blood on either side do not mix. But there is an opening on a right atrioventricular septum. So, this partition is right atrioventricular septum. It has an opening and it is guarded by, tricuspid wall having three flaps. Similarly, on left side, there is left atrioventricular septum, which again has an opening guarded by bicuspid and mitral wall, bicuspid or mitral wall. In previous lecture, when I started with internal structure of heart, my first line was human heart is completely four chambered. We also talked about other vertebrate. In fishes, it is two chambered. In amphibian, it is three chambered. In reptiles, it is incompletely four chambered, except crocodile, which has completely four chambered heart. In aves and mammal, pakshi and सस्तन prani, the heart is completely four chambered. Then I started with atria. I introduced the two atria. After which, in detail we talked about right atrium, left atrium. And there the previous lecture came to end. Now in this lecture, I will talk first for ventricles in general. Then I will talk for right ventricle and left ventricle in particular. मतलब कि आप पहले वेंट्रिकल्स की इंफॉर्मेशन दोगे और फिर राइट वेंट्रिकल के बारे में बात होगी, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में बात होगी. फिर हम लोग वापिस एक बार एट्रिया, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करेंगे एज अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन. और फिर वापिस एक बार आपके सामने एक डायग्राम स्केच करेंगे, बिकॉज आपको वो डायग्राम ड्रॉ करनी है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टि से, तो आपके हाथ से वो जानी चाहिए. और एक हमें कोई आर्टिस्टिक स्किल का यहाँ प्रेजेंटेशन नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग वो इम्पॉर्टेंट है कि आपकी डायग्राम प्रोपोर्शनेट हो,
उसके लेबल्स करेक्ट हो और आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट समझे कि हमारा हृदय बाहर से तो हमें पता है वेंट्रल साइड से कैसा है, डॉर्सल साइड से कैसा है, पर अंदर से कैसा है, वो हमारा उद्देश्य है। तो लेट अस स्टार्ट। वेंट्रिकल्स। सो फर्स्ट पॉइंट, लोअर टू large, thick walled blood pushing chamber are called ventricles. Lower खालचे, टू दोन, लार्ज आकार से बड़े, थिक वॉल्ड जिनकी वॉल थिक होगी, ब्लड पुशिंग चेंबर जे रक्त ढकलतात. So right ventricle push the blood for lungs and left ventricle push the oxygenated blood for entire body. So first point, the lower two large thick walled blood pushing chamber are called ventricle. Second point, the two ventricles are right and left. They are separated by interventricular septum. तो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दो वेंट्रिकल है और बीचों बीच है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. तीसरा पॉइंट, अब जरा गौर करो. द वॉल ऑफ वेंट्रिकल is thick, but inner side of wall of ventricle is not smooth. It gives a small ridges and furrows. तो सर आपने कहा कि inner side of wall of ventricle is not smooth. It has the ridges and furrows, म्हणजे टेकडे आणि नाल्या, पर्वत, खाई, रिजेस एंड फरोज है उसको. तो देखो, सो द इनर साइड ऑफ वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज नॉट स्मूथ. इट इज वेरियसली थ्रोन इनटू रिजेस एंड ग्रूव्स या रिजेस एंड फरो. तो लोअर टू थिक वॉल्ड लार्ज ब्लड पुशिंग चेंबर आर कॉल्ड वेंट्रिकल. द टू वेंट्रिकल आर राइट एंड लेफ्ट separated by interventricular septum. The inner side of wall of ventricle is not plain, is not smooth, so it has ridges and grooves. तो देखो, this is ridge and this is groove, म्हणजे फरो, गड्ढा. तो ये छोटे छोटे पर्वत है और ये छोटे छोटे गड्ढे हैं. So inner side of wall of ventricle is not plain, it is variously thrown into ridges and grooves. The small ridges, तो देखो ये small ridges है. These small ridges are called columni, corni. माने छोटे छोटे जो पर्वत है वो कौन है? कॉलुमनी, कॉर्नी. एंड सम टॉल कोनिकल एलिवेशंस, मतलब ये छोटे छोटे पर्वत है और कुछ ऊंचे टीले हैं. And some tall conical elevations are also seen. This one. And these tall conical elevations are called as
papillary muscles. So the small elevations are called columnicorni and the tall conical elevations are called papillary muscle. तो अब हमें वेंट्रिकल के बारे में क्या आयडिया है? तो सर, खालचे दोन मोठे थिक वॉल वाले ब्लड ढकलणाऱ्या कप्प्यांना वेंट्रिकल म्हणतात. ते दोन असतात, राईट आणि लेफ्ट. मध्ये एक पार्टिशन असते इंटरव्हेंट्रिक्युलर सेप्टम. आणि वेंट्रिकलची जी वॉल आहे थिक, त्याची आतमधली जी साईड आहे ती प्लेन नाही. मग त्याला असे रिजेस आहे, टेकडे आणि फरो आहे, नाल्या. और ये छोटे छोटे जो रिजेस है दे आर कॉलुम्निकॉर्नी. आणि सर, काही उंच पर्वत आहे, दे आर कॉल्ड पॅपिलरी मसल. यू मे नोटिस that there are 3 papillary muscle in right ventricle, but there are 2 papillary muscle in left ventricle. You can imagine why. तो सर, आपका सवाल ऐसा है कि आपने देखा होगा कि राइट वेंट्रिकल में 3 पैपिलरी मसल है और लेफ्ट वेंट्रिकल में 2 है, और आपको इस बात का अंदाजा आया होगा. हाँ सर, राइट एट्रियो वेंट्रिक्युलर सेप्टम पे जो ओपनिंग है उसकी रक्षा कौन करता है? ट्राइकस्पिड वाल्व. तो उसको 3 फ्लैप है, तो उनको पकड़ने के लिए 3 पैपिलरी मसल है. और लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पे जो ओपनिंग है उसकी रक्षा करने के लिए कौन है? बाइकस्पिड और माइट्रल वाल्व. तो 2 फ्लैप के लिए 2 पैपिलरी मसल है. ये हो गया जनरल अबाउट वेंट्रिकल्स. हमने इन पर्टिकुलर कुछ भी नहीं कहा की राईट ऐसा है और लेफ्ट वैसा है, नाही. आपण फक्त जनरल पाहिलं की लोअर टू थिक वॉल्ड लार्ज ब्लड पुशिंग चेंबर्स आर कॉल्ड ventricles. The 2 ventricles are right and left separated by interventricular septum. The wall of ventricle is thrown into ridges and groove. The small ridges are columnicorni and tall conical elevations are papillary muscle. एक सिंपल क्वेश्चन नीट में आया था, papillary muscles are found in so liver, kidney, brain and heart. So papillary muscles are there in a heart. ऐसे. तो ये वेंट्रिकल्स तो समझ में आए. अब हमें इन पर्टिकुलर बात करनी है. तो चलो, हमारी पहली बात होगी अबाउट राइट वेंट्रिकल. अब भूल जाओ लेफ्ट वेंट्रिकल. सो नंबर 1, राइट वेंट्रिकल. पहला पॉइंट, राइट वेंट्रिकल इज स्मॉलर एज कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल. मतलब कि आउट ऑफ द 4 चेंबर, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल, द लार्जेस्ट चेंबर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल. माने चारों कप्पों की भी कंपैरिजन करें तो सबसे बड़ा कौन है? लेफ्ट वेंट्रिकल है. और अगर 2 वेंट्रिकल की तुलना करें तो बड़ा है लेफ्ट और छोटा है राइट वेंट्रिकल. सो पहला पॉइंट, द राइट वेंट्रिकल इज स्मॉलर एज कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल. सेकेंड पॉइंट, राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आता है? सर, डीऑक्सीजनेटेड. कहां से आता है? सर, उसके ऊपर जो राइट एट्रियम है वहां से. तो ऊपर के एट्रियम से ब्लड नीचे कैसे आ सका? तो सर, वहां जो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है उस पे एक छेद है, उस छेद में से नीचे आया. और वापिस ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए क्या है? तो सर, वहां ट्राइकस्पिड वॉल है. ओके. सो राइट
ventricle is smaller than left ventricle. It receive deoxygenated blood from right atrium through the opening present on right atrioventricular septum, which is guarded by tricuspid valve. नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अब ध्यान दो. इन राइट वेंट्रिकल देयर आर, इन राइट वेंट्रिकल देयर आर columnicorni and papillary muscles. So these are columnicorni and this is papillary muscle. तो पहला पॉइंट, राइट वेंट्रिकल इज स्मॉलर देन लेफ्ट वेंट्रिकल. दूसरा पॉइंट, राइट वेंट्रिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम through opening present on right atrioventricular septum, which is guarded by tricuspid valve. तीसरा पॉइंट, इन राइट वेंट्रिकल देयर आर columnicorni and there are papillary muscles. चौथा पॉइंट, अब देखो, द फ्लैप माने कस्प ऑफ अ ट्रायकस्पिड वॉल्व. तो सर हे जे छिद्र असतं त्याच्यावरती 3 फ्लॅप वाला व्हॉल्व असतो, ट्रायकस्पिड वॉल्व. तो द कस्प माने फ्लॅप, त्या 3 झडपा ऑफ अ ट्रायकस्पिड वॉल्व अँड पॅपिलरी मसल्स आर कनेक्टेड बाय some threads called chordae tendini. So chordae tendini. तो सर ये जो धागे हैं, ये धागे किसको जोड़ रहे? तो पैपिलरी मसल का टॉप और वो जो 3 फ्लैप्स है उन फ्लैप्स को पकड़ के रखते. सो कॉर्डी टेंडिनी कनेक्ट द फ्लैप ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड पैपिलरी मसल. ये करते क्या है सुनो. जब ब्लड नीचे आए तो ये 3 फ्लैप्स ओपन होंगे एंड ब्लड विल एंटर द राइट वेंट्रिकल. पर जब राइट वेंट्रिकल का होगा कॉन्ट्रैक्शन तो प्रेशर आएगा नीचे से. राइट वेंट्रिकल का जब होगा कॉन्ट्रैक्शन तो नीचे से आएगा प्रेशर. तो हम चाहते कि ये जो वॉल थे जिसमें से ब्लड आ रहा था, हम चाहते कि वो वॉल सिर्फ बंद हो. हम चाहते ये वॉल सिर्फ बंद हो, ये उल्टा ना हो. मतलब आपका दरवाजा बंद है और सामने से जोर से हवा आई, तो एक दरवाजा या खिड़की है और जोरों से हवा आई, वो पहले बंद थी तो वो ऐसे खुल जाएगी और फिर हवा अंदर आएगी. पर जब पिछले खिड़की से जोर से हवा आएगी तो हम चाहते कि ये जो खिड़की खुली है वो सिर्फ बंद हो, उल्टी ना हो, तो उसको धर के रखना पड़ता. तो वो काम करते हैं ये थ्रेड्स. अच्छा, तो कॉर्डी टेंडिनी विच कनेक्ट द पैपिलरी मसल विद द फ्लैप, दे प्रिवेंट रिवर्स ओपनिंग, दे प्रिवेंट रिवर्स ओपनिंग ऑफ द वाल्व. तो ठीक है, राइट वेंट्रिकल इज स्मॉलर देन द लेफ्ट वन. इट रिसीव्स deoxygenated blood from right atrium through the opening present on right atrioventricular septum guarded by tricuspid valve.
It contain columnicorni papillary muscle. It also contain chordae tendini. तो ये chordae tendini का काम क्या है सर? दे प्रिवेंट रिवर्शन ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल. ये उल्टा नहीं होने देते. सिर्फ ऐसे है तो बंद हो जाए और इसको बांध के रखा गया है, इसको उल्टा नहीं होने दिया जाता. दे प्रिवेंट रिवर्शन ऑफ द वॉल. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पांचवा और आखिरी पॉइंट, और ध्यान दो. ये जो हमने देखा राइट वेंट्रिकल जिसमें आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो सर ये रास्ता तो बंद हो जाएगा. इफ द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द ट्राइकस्पिड वॉल गेट क्लोज्ड, क्योंकि नीचे से प्रेशर आया, वो फ्लैप्स बंद हो गई और उल्टी नहीं होनी चाहिए तो थ्रेड्स ने उसको पकड़ के रखा. तो ब्लड जाएगा कहां? म्हणजे हे जे डीऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे जे वरून खाली आलं होतं राइट एट्रियम मधून राइट वेंट्रिकल मध्ये. अब राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा, तो नीचे से प्रेशर आएगा, तो ब्लड तो ऊपर जाएगा, पर यह रास्ता तो हो गया बंद. अब ब्लड जाएगा कहां? सो व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड गोज टू पल्मोनरी अवॉर्टा, पल्मोनरी आर्टरी अँड गोज टू लंग्स फॉर ऑक्सिजनेशन. म्हणजे सर राइट वेंट्रिकल जर कॉन्ट्रॅक्ट झालं तर ब्लड कुठे जात असते? लंग्समध्ये. मेरा आपका राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड गोज टू लंग्स. तो उसके लिए यहां से निकलता है पल्मोनरी ट्रंक. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स. सो यहां पर आप आइए और इस कॉर्नर का नाम बताइए. तो सर आपने कहा कि एक कोने में आइए और उसका क्या लोकेशन बताओगे? सुनो, ये कौन सी साइड है? लेफ्ट. और ये ऊपर माने सर एंटीरियर. सो लेफ्ट एंटीरियर कॉर्नर ऑफ राइट वेंट्रिकल में आइए. सो ऊपर माने एंटीरियर, इस तरफ माने लेफ्ट. सो टूवर्ड्स द लेफ्ट एंटीरियर कॉर्नर ऑफ राइट वेंट्रिकल देयर इज अ ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, और इसमें से ब्लड जाएगा टू द लंग्स, पर वापस नहीं आना चाहिए. सो हम चाहते कि राइट वेंट्रिकल का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट शुड बी पुश टू लंग्स बट शुड नॉट कम बैक, वापस नहीं आना चाहिए. और जहां भी बैक फ्लो प्रिवेंट करना है वहां कुदरत देती है वाल्व. जैसे राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल बट नॉट बैक, ट्राइकस्पिड वॉल. लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल बट नॉट बैक, बाइकस्पिड वॉल. पोस्ट कैवल टू राइट एट्रियम बट नॉट बैक, यूस्टेचियन वॉल. कोरोनरी साइनस टू राइट एट्रियम बट नॉट बैक, थेबेसियन वॉल. तो वैसे यहां पर इस ओपनिंग पर वॉल्स है, और यहां जो वॉल्स है उसका नाम है तीन सेमी लूनार वॉल्स. तो सर लेफ्ट एंटीरियर कॉर्नर ऑफ द राइट वेंट्रिकल
has a emergence of pulmonary trunk and at emergence only, म्हणजे शुरुआत में ही जिथून तो पाइप शुरू होते तिथंच वाल्व आहे, और जब नीचे से प्रेशर आएगा तो वो सेमिलुनार वॉल ओपन हो जाएगा, ब्लड ऊपर जाएगा, बट नीचे आने की कोशिश करे तो वो बंद हो जाएगा. इट प्रिवेंट द बैकफ्लो. नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, सुनो. राइट वेंट्रिकल हैज टू पुश द ब्लड फॉर सर लंग्स, and the lungs are at what distance from the heart? Sir, very close. मतलब ये हृदय है बंद मुट्ठी जितना, और इधर से एक लंग है, इधर से एक लंग है. इसका मतलब right ventricle who push the blood for lungs, it do not have to push it for the long distance, obviously. And hence the wall of right ventricle is thin as compared to left ventricle. सर, राईट वेंट्रिकलची वॉल थोडी पतली आहे लेफ्ट वेंट्रिकलच्या कंपॅरिझनमध्ये. का? कारण राईट वेंट्रिकलला खूप जोरात कॉन्ट्रॅक्शन करून ब्लड ढकलायचं नहीं है, सिंपली वहीं पे है, साइड में ही है लंग्स, वहीं तक ढकेलना है. अब जैसे ये जो टोकन है, ये मुझे 2 फीट की दूरी पे किसी को देना है तो मैं ऐसे दूंगा, पर मुझे 20 फुट की दूरी पे ये देना है तो मैं ताकत लगाऊंगा, तो इनका जोरदार कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, तो ये वॉल ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत नहीं है. सो रिमेंबर द वाल, WALL, नॉट वाल्व. द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल इज थिन एज कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल. अब आप रिवाइज करो. सर, पहला पॉइंट, राइट वेंट्रिकल इज स्मॉल देन लेफ्ट वेंट्रिकल. दूसरा पॉइंट, राइट वेंट्रिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम थ्रू द ओपनिंग ऑन द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वॉल. तीसरा पॉइंट काय आहे राइट वेंट्रिकलमध्ये? सर, कॉलुमनी कॉर्नी, पॅपिलरी मसल, कॉर्डी टेंडिनी. कॉलुमनी कॉर्नी, पैपिलरी मसल, कॉर्डी टेंडिनी. और क्या है? फ्रॉम द लेफ्ट एंटीरियर कॉर्नर ऑफ राइट वेंट्रिकल अराइजेस द पल्मोनरी ट्रंक. At its beginning, there are 3 semilunar valves which prevent backflow of blood into right ventricle again. Next, then this wall of right ventricle is thin as compared to left ventricle. आता मराठीत, सर राइट वेंट्रिकल लेफ्ट पेक्षा छोटा आहे. राइट वेंट्रिकल मध्ये राईट ॲट्रियम मधून येते डिऑक्सिजनेटेड ब्लड. कसं? तर सर, या दोघांच्या मध्ये जे पार्टिशन आहे, ज्याला राईट ॲट्रिओ वेंट्रिक्युलर सेप्टम म्हणतात, त्या पार्टिशनला छिद्र आहे, त्याच्यातून खाली येतं. मग परत का नाही जात खालून वर? कारण सर त्याच्यावर बसवला आहे ट्रायकस्पिड वॉल. तिसरा पॉईंट, राईट वेंट्रिकलमध्ये काय आहे? सर कॉलुमनी कॉर्नी आहे, म्हणजे छोटे टेकडे. पॅपिलरी मसल आहे, उंच पर्वत. कॉर्डी टेंडनी आहे, म्हणजे थ्रेड्स आहे जे पॅपिलरी मसलला वॉलसोबत जोडतात आणि हे धागे त्याला उलटं नाही होऊ देत. अच्छा, और क्या है? तो सर राईट वेंट्रिकलच्या लेफ्ट अँटिरियर कॉर्नरमधून एक मोठी व्हेसल निघते, पल्मोनरी अवॉर्टा. आणि सर त्याच्या सुरुवातीलाच 3 सेमिलुनार वॉल्व आहे जे ब्लडला वर जाऊ देतात प्रेशरमुळं, पण खाली नाही येऊ देत, ते बंद होऊन जातात. अच्छा, तो शेवटी तो सर हे जे वॉल आहे राईट वेंट्रिकलची, ती लेफ्टपेक्षा थोडी कमी जाड आहे. का? कारण सर याला जास्ती दूर रक्त नाही ढकलायचं, जवळच लंग्स आहे तिथपर्यंत पाठवायचं. अब हिंदी में,
राइट वेंट्रिकल लेफ्ट की तुलना में छोटा है। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम से। कैसे? दोनों के बीच जो पार्टीशन है राइट एवी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, उस पे ओपनिंग है। उस ओपनिंग पे एक वाल्व है जो ब्लड को नीचे आने देता, वापस नहीं जाने देता। तीसरा पॉइंट, सर राइट वेंट्रिकल में है ना कॉलुमनी कॉर्नी है, पैपिलरी मसल है, कॉर्डी टेंडनी है। चौथा पॉइंट और क्या है? सर राइट वेंट्रिकल के अगर हम लेफ्ट एंटीरियर कोने में जाए तो वहां एक ओपनिंग है और वहां से निकलता है एक बड़ा ब्लड वेसल कॉल्ड पल्मोनरी अवर्टा, जो ब्लड को ले जाता है टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और सर उस ओपनिंग पे ही 3 वाल्व है विच अलो द ब्लड टू गो टू लंग्स बट प्रिवेंट इट्स बैकफ्लो। तो ये 3 वॉल्व खून को ऊपर जाने देते, वापिस नहीं आने देते। और आखिरी में सर राइट वेंट्रिकल की आप बताते कि जो वाल है वो लेफ्ट की तुलना में पतली है। क्यों? वो इसलिए कि इसे ज्यादा दूर तक ब्लड धकेलने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वेंट्रिकल इन जनरल एंड राइट वेंट्रिकल इन पर्टिकुलर। अब हम बात करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल की। So, atria, capital A. 1 right atrium, 2 right left atrium, capital B, ventricles, उसमें 1 राइट वेंट्रिकल जो हमने अभी कंप्लीट किया। और नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें। सो पहला पॉइंट, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल इज लार्ज एज कंपेयर टू right ventricle and it is largest and thickest chamber in our heart. तो सर राइट वेंट्रिकलच्या पेक्षा लेफ्ट वेंट्रिकल मोठा आहे एवढंच नाही, चारों कप्पों की तुलना करें, चारही कप्प्यांची कंपॅरिझन केली तर हा सगळ्यात मोठाही आहे आणि याच्या वॉल थिकेस्ट है। क्यों? इसको इतने जोरदार सिस्टोल करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्शन, ताकि ब्लड हर जगह तक पहुंचे, नखापासून तर डोक्यापर्यंत, केसापर्यंत। तो लेफ्ट वेंट्रिकल इज लार्जर देन राइट वेंट्रिकल। इट इज लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट चेंबर इन ह्यूमन हार्ट। सेकेंड पॉइंट, लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आता, कहां से आता, कैसे आता, वापस क्यों नहीं जाता? तो लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम थ्रू ओपनिंग present on left atrioventricular septum. So left ventricle receive oxygenated blood from left atrium through the opening present on left AV septum, which is guarded by bicuspid or mitral valve. Bicuspid or mitral valve. It prevents backflow from left ventricle to left atrium. होऊच देत नाही.
तीसरा पॉइंट, क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल में? सर वही जो राइट वेंट्रिकल में था। मतलब सर यहां पर है कॉलुमनी कॉर्नी, पैपिलरी मसल एंड कॉर्डी टेंडनी। यह सब कुछ यहां भी था, कॉलुमनी कॉर्नी, पैपिलरी मसल, कॉर्डी टेंडनी। कॉलुमनी कॉर्नी का आया है सर स्मॉल रिजेस, पैपिलरी मसल का आया है टॉल कोनिकल एलिवेशन। सर ये क्या रहते ये कॉलुमनी कॉर्नी एंड पैपिलरी मसल? ये जो वेंट्रिकल की वाल है, जो हार्ट मसल है, मायोकार्डियम है, स्ट्राइटेड एंड इनवॉलंटरी मसल है, बस उसी के एक्सटेंशन से, वो प्लेन नहीं है। सो द लेफ्ट वेंट्रिकल कंटेन कॉलुमनी कॉर्नी, पैपिलरी मसल, कॉर्डी टेंडनी। अच्छा, और क्या है? अब आप ध्यान दीजिए, अब आप जाइए राइट एंटीरियर कॉर्नर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सर दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल और उसका राइट एंटीरियर कॉर्नर, तो सर लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये है राइट कॉर्नर, ये राइट साइड है, ये राइट कॉर्नर, पर सर ये नहीं, एंटीरियर ऊपर, तो आपको यहां जाना होगा। सो राइट anterior corner of the left ventricle has a emergence of systemic aorta. So right anterior corner of the left ventricle shows the emergence of systemic aorta. देखो ये वो ब्लड वेसल है जो हेड, नेक, शोल्डर, फोरलिम्स, अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, इन सबको ब्लड सप्लाई करती है। तो ये जो सिस्टमिक एवॉर्टा है उसके 3 पार्ट रहते, सिर्फ ध्यान में रखो, ये कुछ लिखना नहीं है आपको, मैं बताऊंगा कितना लिखना है। तो दिस इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एवॉर्टा, जहां से निकली थी करोनरी आर्टरी फॉर हार्ट मसल। ये है आर्च ऑफ एवॉर्टा, यहां से 3 वेसल रहती, ब्राकियोसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लावियन। अब 2 हाथ हो गए, चेस्ट हो गई, नेक हो गया, हेड हो गया, अब नीचे ब्लड, और इसके लिए ये आर्च चले जाती है हार्ट के पीछे से ऐसे, और फिर आखिरी तक आती है, और फिर उसकी 2 ब्रांचेस हो जाती पैर के लिए, और इसे कहते हैं एब्डोमिनल एवॉर्टा और डॉर्सल एवॉर्टा। ये इंसान के शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी है। सर सबसे बड़ी ब्लड वेसल नहीं, सबसे बड़ी आर्टरी है। तो सर सबसे बड़ी ब्लड वेसल कौन सी है? इंफीरियर वेना कावा, जो निचले शरीर से लाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बस इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखो, ठीक है सर। हम तो सीख रहे लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल इज लार्जर देन राइट वेंट्रिकल
It is largest chamber of a human heart and its wall is thickest. The left ventricle receives oxygenated blood from left atrium through the opening present on left atrioventricular septum guarded by bicuspid or mitral wall. The left ventricle contains columni corni, papillary muscle, chordae tendineae. चौथा पॉइंट, from the right anterior corner of the left ventricle there is an emergence of systemic aorta and at the opening itself, emergence itself, शुरुआत में ही, शुरुआतीलाच यहां भी है 3 सेमिलुनार वॉल्स. क्यों? जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा राइट वेंट्रिकल के साथ, दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, राइट वेंट्रिकल का ब्लड लंग्स में गया और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड बॉडी के लिए गया फॉर 0.3 सेकेंड तक, वो आगे आएगा. तो व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू ऑल बॉडी एक्सेप्ट लंग्स. तो ये ब्लड ऊपर जाना चाहिए, वापिस नहीं आना चाहिए. पर सर वापस आएगा क्यों? अरे भाई, ब्लड ऊपर तब तक जाएगा जब तक नीचे से प्रेशर है, और प्रेशर किसकी वजह से है? सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन. जब रिलैक्स होंगे वेंट्रिकल्स तो प्रेशर डिक्लाइन होगा, तो अभी अभी जो ऊपर ब्लड गया वो आ सकता था, और इसीलिए ये वॉल्व बंद होने चाहिए. सो यहां भी है 3 सेमिलुनार वॉल्व, यहां भी है 3 सेमिलुनार वॉल्व. इनको कहते पल्मोनरी वॉल्व्स और उसको कहते सिस्टमिक वॉल्व्स. तो लेफ्ट वेंट्रिकल इज लार्जर देन राइट वेंट्रिकल. इट इज लार्जेस्ट chamber of human heart and its wall, muscular wall, is thickest. It receives oxygenated blood from left atrium through the opening present on left AV septum guarded by bicuspid wall. It has columni corni, chordae tendineae and papillary muscle. From right anterior corner of left ventricle arises pulmonary trunk. From the right anterior corner of the left ventricle arises systemic aorta that carries the oxygenated blood for whole body. And at its emergence there are 3 semilunar valve called aortic semilunar valve, और इनको बोलो pulmonary semilunar valve. आगे देखो, सो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल थिक क्यों है? तो देखो, इसकी थिकनेस अगर इतनी है तो इसकी थिकनेस इतनी है. सो इट हैज थिकेस्ट मस्कुलर वॉल बिकॉज इट हैज टू पुश द ब्लड फॉर एंटायर बॉडी. मग आता तुम्हाला काय लक्षात आलं? जर राईट ॲट्रियम, लेफ्ट ॲट्रियम, तो सर राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुए तो सर ब्लड नीचे आएगा इन रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल, और दोनों के नीचे के चेंबर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल ये कॉन्ट्रैक्ट हुए तो सर एवी वॉल बंद हो जाएंगे, तो ब्लड एट्रिया में नहीं जाएगा. तो अब राइट वेंट्रिकल का ब्लड लंग्स में जाएगा और लेफ्ट का ऑक्सीजनेटेड ब्लड होल बॉडी के लिए जाएगा. तो योर बॉडी रिसीव्स अ ब्लड व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, योर लंग्स गेट अ ब्लड व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल्स गेट द ब्लड. सो व्हेन एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक दिस. ठीक है, तो अब इस डायग्राम में हमें निकालनी है सिस्टेमिक अवॉर्टा. देखो, ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर से
ये है सिस्टमिक अवॉर्टा। ब्राकियोसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लावियन। और यहां पे है 3 सेमिलुनार वॉल्स। तो पल्मोनरी सेमिलुनार वाल्व, अवॉर्टिक सेमिलुनार वाल्व, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, यूस्टेचियन वॉल, पीछे थेबेसियन वॉल। और शायद इसीलिए डॉक्टर साहब अलग अलग जगह पे स्टेथोस्कोप का डायफ्राम रखते हैं। सो व्हाई डू द डॉक्टर प्लेस द डायफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप ऑन आवर चेस्ट एट डिफरेंट लोकेशन? बिकॉज सारे वॉल एक जगह थोड़ी है। यूस्टेचियन, थेबेसियन, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी सेमिलुनार, अवॉर्टिक सेमिलुनार। ये एक बार नीट क्वेश्चन था। एक बार पूछा था, फॉर सम रीजन इफ द कॉर्डी टेंडनी ऑफ राइट वेंट्रिकल आर नॉन फंक्शनल, द इफेक्ट वुड बी। तो सर फॉर सम रीजन, किसी कारणवश, कॉर्डी टेंडनी माने वो धागे ऑफ राइट वेंट्रिकल आर नॉन फंक्शनल, तो असर क्या होगा? तो सर ये धागे ट्राइकस्पिड वॉल को उल्टा नहीं होने देते, वही नॉन फंक्शनल हो गए। तो फिर सर 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो राइट एट्रियम में वापस जा सकता, और जो पल्मोनरी ट्रंक में जा रहा था वो थोड़ा कम जा सकता। तो ऐसे अप्लाइड पार्ट पूछते हैं की बच्चे पडते या नाही बराबर. म्हणजे सर इकडचे धागे लूज झाले तर काय होईल, मग हा वॉल उलटा होईल तो थोडं ब्लड इकडे जाईल म्हणजे इकडे ब्लड कमी जाऊ शकते. ऐसे तो ये हमने कंप्लीट किया 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स. अब आपको सारे वॉल्स भी पता है. अब हम लोग डायग्राम निकालेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. अलग से 3 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए डायग्राम भी आ सकते और लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन आ सकता. पहले लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क के हुआ करते थे, फिर वो 5 मार्क के हुए और अब वो 4 मार्क के हैं. सिस्टम बदलती गई. तो देखो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरएट्रियल सेप्टम, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ओपनिंग ट्राइकस्पिड वॉल, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ओपनिंग बाइकस्पिड वॉल. अब यहां से this is systemic aorta.
3 सेमिलुनार वॉल्स। अब यहां से पल्मोनरी ट्रंक, 3 सेमिलुनार वॉल्स। तो ये जो सिस्टेमिक अवॉर्टा है वो पल्मोनरी ट्रंक के पीछे है, इसीलिए हमने ऐसा दर्शाया। तो पल्मोनरी सेमिलुनार वॉल, एवॉर्टिक सेमिलुनार वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, कॉलुमनी कॉर्नी, पैपिलरी मसल, कॉर्डी टेंडिनी। सो कॉलुमनी कॉर्नी, पैपिलरी मसल्स, कॉर्डी टेंडिनी। सो ओपनिंग ऑफ प्री कैवल, ओपनिंग ऑफ पोस्ट कैवल, नीचे दब गया ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, 4 ओपनिंग्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स। सो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो सिस्टेमिक एवॉर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, कॉलुमनी कॉर्नी, पैपिलरी मसल्स, कॉर्डी टेंडनी, बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। एटलीस्ट इतने भी लेबल दिए तो चलेगा। तो ये डायग्राम हमें निकालनी है। और कई आर्टचं प्रदर्शन नहीं है, हमें प्रॉपर प्रपोर्शन और कंटेंट आनी चाहिए, दैट्स इट। तो हमने कंप्लीट किया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब अगर बोर्ड में क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, आता ही है, तो बच्चे ओवर राइटिंग करते, समय नहीं होता। 3 घंटों में 70 मार्क्स का क्वेश्चन आपको लिखना है, बोथ बॉटनी एंड जूलॉजी। तो डोंट ओवर राइट द थिंग। तो सर कैसे लिखे, सुनो। फर्ज करो कि आप लिख रहे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो ऐसे लिखो, ह्यूमन हार्ट इज कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड, अपर टू ब्लड रिसीविंग स्मॉल थिन वॉल्ड चेम्बर्स आर एट्रिया, लोअर टू लार्ज थिक वॉल्ड ब्लड पुशिंग चेम्बर्स आर वेंट्रिकल। बस। अब राइट एट्रियम, राइट एट्रियम receive deoxygenated blood from whole body through superior vena cava, inferior vena cava, and from heart also through opening of coronary sinus. Right atrium is separated from left atrium by interatrial septum, which has a depression fossa ovalis. It corresponds to foramen ovale. The deoxygenated blood from right atrium goes down in right ventricle through the opening present on right atrioventricular septum, guarded by tricuspid wall. अब टाइटल आएगा लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम receive oxygenated blood from lungs by 4 pulmonary veins. It has 4 openings for pulmonary veins. It push oxygenated blood down in left ventricle through the opening present on left AV septum, guarded by bicuspid wall. So both atria opens below them in respective ventricle. अब ventricles लिखो। The lower 2 thick walled blood pushing chambers are ventricles. They are 2 ventricle, right and left, separated by interventricular septum,
फिर टाइटल आएगा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल has columni corni papillary muscle chordae tendineae. From the left anterior corner of the right ventricle arises pulmonary trunk, and at its emergence there are three semilunar wall. Left ventricle is largest chamber of human heart. It has thickest muscular wall. It receives oxygenated blood from left atrium. It also has columni corni papillary muscle chordae tendineae, and from right anterior corner arises systemic aorta that supplies blood to entire body except lungs. At its emergence there are three semilunar walls. बस क्या है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, उनमें कौन सा ब्लड है, क्या वहां से इमर्ज होता है, बस ऐसा लिखना है। यहां किसी के ज्ञान का प्रदर्शन नहीं हो रहा है, कर्टेल करो चीजों को लिखते समय। तो दिस इज द पिक्चर एंड डिस्क्रिप्शन आई टोल्ड यू। इन नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट, वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये दो चीजों की। फिर अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी की, और फिर हार्ट टाइटल खत्म हो जाएगा। थैंक यू।